Hello everyone present here. Today it's a special webinar for us. We have Aman Bhaiya, Nishant Bhaiya, Apur Bhaiya. Nishant Bhaiya will be joining us soon, but with us today from 2K16 batch. First of all, let me brief you about them individually. Aman Bhaiya completed his BTech from BIT in 2020, the first true batch to be affected by COVID. For 1.5 months, but it still counts. He had a core job at Reliance Industry, wanted to pursue research, got admitted to IIT Guwahati. Next year, he went to ACE, one of the most competitive engineering exams. He secured an All India rank of 99 in GATE 2021. Now for Saurabh Bhaiya, as we BITians say, a true K60 from Civil Department. Got placed with SA Infrastructure Consultant as a structural engineer right off the college. Worked with them for 10 months and then switched to NHAI as site engineer. And Nishant Bhaiya will be joining us soon, but his credentials. He completed his internship from Carnegie Mellon University, USA. He landed a job at Wipro as a developer. We welcome you all, Bhaiya. Anshu, please take over. Thanks, sirs. So let's start with the interview. So we have many K20s with us today. So let us start with some talks about the campus and college life you had. So first question from my side, Bhaiya. Aman Bhaiya, for you. What were your favorite place to eat or hang out during your time at BIT? That's making me quite nostalgic. Uh, Even after such a busy schedule of classes, I had to just join with all my friends together for a walk in the evening and even in the night after dinner. And we used to go out, sometimes Lakshmi, sometimes Chotu Dhaba, sometimes Sharma Dhaba, where the samosas are so famous. That samosa chaat, it still makes me like that I'm back in my memories at just walking out there on the streets of PIT Mesra. So it's very, very nice moment that I will always cherish in my future and all time in life. That will never going to come back. So that's the great moment that you rightly asked. I would request Saurav to even speak about this. Yes, yes. Sorry, I didn't hear the question. Question is there. What were your favorite place to eat or hang out during your time at BIT? Anywhere with our friends. Chotu was our main spot at the third year. With friends, any place is good, I guess. Okay. Uh, Bhaiya, we would have also enjoyed this moment at BIT, but it's our bad luck that due to this lockdown we can't. Moving on to the next. Yeah, Uh, really sad, really sad. yes, Bhaiya, yes, Bhaiya. So moving on to the next. Uh, भैया ये बताइए आपके बैच में मास बंक का क्या सीन था? सक्सेसफुल हो पाता था क्या? अमन भैया. हाँ, मास बंक के बारे में पूछे तो हाँ, कभी कभी सक्सेसफुल हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ है शायद. आई थिंक सौरभ इस पे ऊपर ज्यादा बेटर बता पाएगा क्योंकि वो जो मास बंक के लिए जो विलन्स होते हैं ना उसपे वो एक था ये. तो he will be definitely want to explain. So, myself and Nissan, we are resident in Ranchi itself. So, we were at the time of like first benches in the first year. Mass bunk was not quite our thing at that time. So, yes, we hindered them like two times. We got to the class after we planned the mass bunk. We are we were the first benches, but from the second year itself, it was smooth. We planned the mass bunk, we did it successfully, and till the fourth year, we were like just missing and bunking the class even if it was not a mass bunk. We can leave the class for some other business. Well, you can understand the crux of the problem. Like even 59 people are ready, one is not ready, and now that professor enters. Oh my God, what is this? So this happens. This always happens. We were the one like teacher used to say, "Why the hell did you come to the class when nobody is in?" So first year, like Yeah, college that's life changes you completely.
your first year, what you are not the same person after you leave the college. Exactly. So भैया ये बताइए फेवरेट प्रोफेसर्स कौन थे बीआईटी में? This question should be answered by Aman itself. He is the studious one. हाँ, that's right, सौरभ. मेरे हिसाब से मेरे मतलब सारे टीचर्स के अपने अपने क्वालिटीज होते हैं. जस्ट लाइक जैसे सारे फिंगर्स बराबर नहीं है. एवरी प्रोफेसर, एवरी फैकल्टी मेंबर इज क्वाइट डिफरेंट एंड क्वाइट यूनिक इन हिज और हर वे. तो मुझे लगता है कि आई थिंक बिंदु लाल मैम एंड सुदेशना मैम, दे वर द फेवरेट. Bindulal ma'am was very kind, and she helped us growing with things so nicely, even with the concepts, the theories. And Sudeshna ma'am के साथ वो थोड़ा strict relation था, लेकिन she was also very good and very kind-hearted to us, I think. But Aman was his favorite. That's good From to my hear side, I will from say your side. Ranveer sir in the first year. And Saurabh, what according to you? Ranveer sir in the first year maths. Oh, right. Oh, nice. So that mechanics. The best thing that like I can talk about a mantra when you can also make your teacher feel happy about you, or even to come in the good books. तो लोग एक काम कर सकते हो कि टीचर के उस क्वालिटी को देखो कि जो वो तुमसे एक्सपेक्ट करता है. लाइक अगर वो चाहता है या चाहती है कि तुम अच्छे से काम करो किसी किसी चीज़ में, यू कैन वर्क मोर बेटर एंड मोर देन एक्सपेक्टेड पार्ट. तो वो मतलब टीचर्स के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन में और एक फेवरेटिज्म डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करेगा. Sorry, in Reeds are great student. Saurabh, you can you just do something with your voice? It's cracking in between, I think. Yeah, little bit. Maybe some network issue I am facing. Oh, I think now it's okay. Yeah. So there are many more interesting questions with us. So moving on to the next, भैया ये बताइए जैसे कि बर्थडे, अब ये बताइए जैसा कि बर्थडे सेलिब्रेशन बीआईटी में इंटरेस्टिंग तरीके से होता है, वो आप भी जानते होंगे. सो आप लोग अपना बर्थडे या अपने दोस्त का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते थे वहाँ? निशान ने ज्वाइन किया क्या? इस क्वेश्चन के पहले निशांत आ जाए तो बेटर होगा. I think Nishant Bhaiya is not with us now. He will join shortly. एक्चुअली बर्थडे की बात करें तो एक दूसरे को पीटने वाला जो वो दैट्स द क्रेजी मोमेंट, वो कभी नहीं जा सकता. इसीलिए मेरा बर्थडे हमेशा सीक्रेट रहता था और किसी को पता भी नहीं रहता था कि मेरा बर्थडे कब है. कोई मारेगा भी नहीं मेरे को. वेल सौरभ, तुम्हें बता दो कितनी बार खाए हो? फर्स्ट ईयर ही काफी अजीब सा था. आई इवन डोंट नो कौन कौन आके मेरे पैसे में खा गया. हॉस्टल में ही हुआ था, लाइक नाइट कैंटीन थी उस समय. तो आई वाज असलीप. निशान को ही पता था. ही मेड दैट ऑल फंक्शन, सबको बुला के लाया और किसने मारा किसने क्या खाया हमें कुछ नहीं पता, बट हम मार बहुत पड़ी. फिर मारा भी तो सबको एंजॉय करने वाला. ओके. तो भैया अपना कुछ मेमोरीज शेयर कीजिए कैंपस में जो आपका कॉलेज लाइफ सबसे ज्यादा यूनिक बनाता हो या ऐसा. हाँ, मेरे सबसे बेस्ट मेमोरीज मेरा फ्रेंड के साथ रहा है. मतलब सारे फ्रेंड्स, इनफैक्ट प्रशांत, सौरभ, निशांत, मनीष, ये लोग सबसे साथ में थे हम लोग. एंड हम लोग आपस में सिर्फ इंटरैक्ट करते थे. नमन भी था, ही वाज आल्सो एन एक्सीलेंट गाय एंड स्टिल इज. तो मतलब बहुत इंटरैक्ट करते थे. और वो क्लासेस के बिजी शेड्यूल के बाद जब थोड़ा टाइम मिलता है फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का, थोड़े से टीचर्स के बारे में बात करने का, तो वो जो पार्ट होता है ना, दैट्स द मोस्ट लवेबल पार्ट ऑफ कॉलेज. एंड फेस्ट, कल्चरल फेस्ट हो या कुछ भी, कोई भी इवेंट हो, तो वो सब तो है ही मेमोरेबल. वित्तोत्सव हो या कुछ भी, बट ऑल बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स. इंटर्नशिप विद योर फ्रेंड्स. ऑल बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, राइट. And Saurabh bhaiya, you? I just remember that major part. We were doing internship in the NHI itself, and third year.
So it was really joyful moment, and also working with clubs and all that, making communications, making friends. हाँ. ओके. सो भैया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में चलते रहते हैं कॉलेज लाइफ में, जब वो थर्ड ईयर का लास्ट में हो या स्टार्टिंग में हो. तो इनफैक्ट ये मेरा भी क्वेश्चन है. मोस्ट ऑफ अस रिमेन कंफ्यूज वेयर टू फोकस provided the number of options we have, focusing on placements, whether to go for core or coding, GATE or ESE, how to channelize ourselves. Should Well, we be choosing between placements and GATE, और किसी एक को प्रायोरिटी देकर आगे बढ़ना चाहिए? वेरी वैलिड क्वेश्चन. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग वो चीज़ वो फेज देख चुके हैं, तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तुम लोग को गाइड करे कि वैसे कंडीशंस में कैसे एक्ट करना होता है. लाइक एक 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 लाइफ इंसिडेंस ऐसा ले सकते हैं. मतलब जैसे हम लोग जब फर्स्ट ईयर में एंटर करते हैं, वी आर सो मच विगरस एंड सो मच एक्साइटेड, यहाँ इस कल्चरल इवेंट में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. सेकेंड ईयर में सब पूरा फोकस खत्म हो जाता है, कहाँ जाना है नहीं पता. थर्ड ईयर में थोड़ा थोड़ा बिल्ड होना शुरू होता है, एंड फोर्थ ईयर में एक तरह से प्लेसमेंट फ्रेंड का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, इसका प्रेशर. फिर उसके बाद क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका प्रेशर. तो फोर्थ ईयर बहुत क्रिटिकल है. लेकिन अगर देखा जाए तो अगर इस तरह के कंफ्यूजन पॉइंट को हटाना है तो अपने क्वालिटीज को पहचानो. तुम कहाँ फिट बैठते हो. रैंक योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटीज. अगर तुम्हारे क्वालिटी में ये है कि तुम कोर जॉब्स में बहुत अच्छा कर सकते हो, तो गो फॉर अ कोर जॉब. इफ यू कैन डू वेल इन कोडिंग, देन गो फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी. एंड इफ यू वांट टू परस्यू हायर स्टडीज, देन ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉर इट. मतलब अपनी क्वालिटीज को पहचानो, वेयर यू आर द बेस्ट. और ऑल्सो मेक श्योर कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है. मेक योर ओन इंटरेस्ट एंड फिर उस पर डिसाइड करो व्हाट आर द four things that you have to know in that field, like what are the softwares or what are the skills that you have to learn in that. So interest थोड़ा फॉलो करना ज़्यादा अच्छा रहेगा. राइट. अगर उस पर स्किल्स सीख जाओ तो यू कैन गेट वट एवर यू वांट. राइट. और फर्स्ट ईयर Anshu, में sorry. बहुत ज़्यादा मत Anshu, you're muted. ध्यान Anshu, you're देना. muted. Yeah, you're muted. Yeah, sorry. Harsh, please go ahead with the questions we have. थैंक यू अंशु. मेरा पहला सवाल भैया स्टार्टअप से रिलेटेड है. कॉलेज में हम सभी को कुछ ना कुछ आइडिया आते रहता है स्टार्टअप के बारे में, ये करना है वो करना है. बहुत कम फ्लोर पे जाता है, लेकिन आते तो सबको ही रहता है. तो मान लीजिए मेरे को एक आइडिया आया कि एक पोल्ट्री फार्म का स्टार्टअप करना है. ठीक है. Right. तो आसपास के एरिया के सारे रेस्टोरेंट के सप्लायर मेरे को बनना है, एक लोकल ब्रांड खड़ा करना है. तो इस शुरू कैसे करते हैं? प्लान तो आ गया, आइडिया आ गया, अब आगे क्या कर रहे हैं? क्योंकि सौरभ का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस पे, तो सौरभ कैन यू. मतलब we Nishant and Arku in chemical branch, we started a startup. We also got our client. तो फर्स्टली तो मेरा सजेशन रहेगा, check with the market that what you are doing and what is now being presented. If you are doing that is new or that is as per the, like, it is not a startup, it is a business part. Decide that कि ये किस पे जा रहा है. And it is, if pre-established, then check your competitors market में और लोग कैसे क्या कर रहे हैं. What is the rate, what is the actual customer that they want. ये सब पहले पता कर लो. मतलब सीधे शुरू करने से ज़्यादा बेटर है कि एक बार मार्केट स्टडी कर लो. That if you are starting a poultry farm, तो जी भैया. what you are doing कि यहाँ पे जितने फार्म्स ऑलरेडी है इस एरिया पे, कुछ तो गूगल रिव्यूज मिल जाते हैं, कुछ इफ प्रेफरेबल तुम जाके एक बार पता कर सकते हो. कोऑर्डिनेटिंग ऑन कॉन्टेक्टिंग डायरेक्टली थ्रू द वेंडर्स, वो लोगों का क्या कहना है इस पे. नॉट एज अ लाइक तुम उस पर खरीदने जा रहे हो ऐसा. एज एन कस्टमर भी तुम्हें बहुत कुछ आइडिया मिल सकता है वहाँ का. यू हैव टू नो योर कस्टमर्स जाने से पहले. उसके बाद सम टीचर्स कैन ऑल्सो हेल्प कि तुम जो अपना आइडिया पिच कर रहे हो, एंड आई ऑल्सो हैव सम कॉन्टैक्ट्स. तुम अपना एक बार प्रेजेंटेशन बना लोगे तो आई कैन गेट यू इन टच विद देम. वो हेल्प कर सकते हैं इन सीडिंग योर स्टार्टअप. तो इनिशियली पूरा एक मार्केट स्टडी कर लो, एंड एक छोटा सा लाइक एक क्या बोल सकते हैं टेस्ट, बीटा टेस्ट के जैसा तुम रन कर सकते हो उस पर.
लाइक इनिशियल एक ऐसा कोई कस्टमर उठा के इन दैट ओनर, तो बाद भी हो सकता है कि थ्योरेटिकली सही लग रहा हो, प्रैक्टिकली कुछ गड़बड़ आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बार मार्केट में जाके लोगों से मिलो इस पे कि वो जो कर रहे हैं वो कैसे क्या कर रहे हैं, नॉट एज अ सेलर, एज अ कस्टमर, कि तुम कस्टमर हो तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या अलग है, और एक फाइंड आउट करना चाहो कि कस्टमर के रिव्यूज में क्या नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं जो तुम उसको फिल कर सकते हो। दैट विल मेक यू लाइक डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, तो तुम थोड़ा कंपटीशन से आगे आ सकते हो। और थोड़ा टाइम मतलब देना, उस पर हड़बड़ाना नहीं। बहुत लोग हड़बड़ा जाते हैं तो तुरंत ड्रॉप भी कर देते हैं। तो तुमने कहा कि लोग शुरू तो सभी को करते हैं, बहुत कम ही सक्सीड होते हैं, या कोई कोई बैच में कोई भी नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। अपने में स्टार्टअप का क्लब भी है, और उस पर भी प्रेसिडेंट जो उसके है वो जॉब लेके बैठ रहे हैं। दैट डजंट मेक एनी सेंस। तुम बस बोलने को पोस्ट पे जा रहे हो एंड यू आर नॉट डूइंग दैट। तो ट्राई करो कि उस पर थोड़ा रिजिड रहो, गिव इट टाइम। जैसे 4 साल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसको तुरंत में ड्रॉप मत कर देना। इफ इट इज अ गुड आइडिया, स्टिक टू इट, रास्ता निकलेगा। मतलब परसेवरेंस बना के रखना, और पहले मार्केट अच्छे से स्टडी करो बिफोर जंपिंग टू दैट। भैया किसी भी आइडिया का फिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि वायबल है कि नहीं है? मेक कॉन्टैक्ट्स इन दैट फील्ड। बहुत सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए अच्छे से, और उस फील्ड में कॉन्टैक्ट करो। अब जैसे तुमने पोएट्री फार्म का कहा, और मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। लाइक आवर आइडिया वाज टू मेक अ वीआर और एआर मॉडल ऑफ द हाउस। लाइक इंटीरियर डेकोरेटर्स जो होते हैं, दे डेकोरेट, बट वी वांटेड कि हम लोग उसको बिफोर हैंड, इवन बिफोर अ ब्रिक इज पुट इनटू द लैंड, वी कैन क्रिएट द होल मॉडल इन वीआर एंड एआर। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, पहले हो चुका है, बट इन इंडिया और इन झारखंड इट इज वेरी लेस। लाइक इट इज अ न्यू काइंड ऑफ आइडिया फॉर अदर्स। आप उसको 3D में एज इन वीआर आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो जैसे हमें चेक करना था आवर फिजिबिलिटी इज हाउ मच इन द मार्केट, तो हमने क्या करा कि वी समहाउ मैनेज द कस्टमर फॉर अस, किन्हीं को कुछ बनाना है तो वी ट्राई टू मेक दैट फॉर फ्री फॉर देम। एट इनिशियली वी ट्राई कि हम लोग उसके लिए फ्री करके देखें कि हाउ मच वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट एंड हाउ मच सेटिस्फैक्शन द कस्टमर इज गेटिंग फ्रॉम दैट। तो वी रिसर्च कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी सारे जो इंटीरियर डिजाइनर्स है, वी कोऑर्डिनेटेड विद देम। हम लोगों ने पर्सनली उनके ऑफिस जाके हमने घूमा है, उनसे बात करी है, क्या रेट्स है, क्या आइडियाज मिल सके, कहीं पे एज अ कस्टमर, कहीं पे एज अ कॉलेज स्टूडेंट दैट वी आर डूइंग दिस स्टार्टअप। तो आप ऐसे करके आइडियाज तो गेन कर सकते हो, लेकिन इनिशियली सीधे मनी पे फोकस मत रखना। आइडिया पे फोकस रखो कि आइडिया आपका सही जा रहा है या नहीं। उसके लिए आपको एक बीटा टेस्ट तो मस्ट है कि आप एक परफॉर्म करके देखो। आइडिया आप कोई घर के रिलेटिव के साथ भी कर सकते हो, कि अगर राइट। वो आपका कस्टमर हो तो आप क्या करोगे। वो भी मोस्ट विजिबल अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ, जो एक थर्ड पार्टी व्यू दे आपको, नॉट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर पर्सपेक्टिव कि हाँ ये सही जा रहा है या नहीं। एक थर्ड पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मिल पाए एज अ कस्टमर। राइट। एंड एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि नेवर गो फॉर एनी आइडिया जो कि पहले से है। प्लीज़ मतलब इसमें पूरा लॉस है। तुम यहाँ पे बेवकूफ़ी नहीं कर सकते, कोई पर्सनल बायस नहीं रख सकते कि मेरे को पोल्ट्री वर्क ही करना है या ऐसा कुछ। तुम्हें वो देखना है विच इज़ मिसिंग इन मार्केट, तो तुमको उस चीज़ पे काम करना है। देयर इज अ तो डिफरेंस इन स्टार्टअप मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस। तो ये डिटरमाइन कर लो करना क्या है। बिजनेस करना है, सो यू आर गोइंग इन द फील्ड जो पहले से है, और कुछ नया स्टार्टअप करना, लाइक यू आर डूइंग समथिंग न्यू। वहाँ कंपटीशन कम है, लेकिन वहाँ पे मार्केट है कि नहीं, तुम्हें वो पकड़ना पड़ेगा। तो पहले राइट। ये डिसाइड करो कि इट इज अ स्टार्टअप और इट इज अ बिजनेस। इसका आइडिया होना चाहिए। राइट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2015 में पिक्चर्स आया था। आप लोग 2016 बैच के हैं भैया, कोई रिलेशन? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करो प्लीज। 2015 में एक टीवी सीरीज आई थी पिक्चर्स नाम से, ओके। और आप लोग 2016 बैच के हैं और आपने स्टार्टअप किया, तो इसमें कोई रिलेशन है भैया कि? सौरभ वो कर सकता है इसका आई आंसर। एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन करेक्टली। नहीं, दे आर टॉकिंग क्या? अबाउट स्टार्टअप थिंग। आपके भैया जो स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट था, जो उस समय जो क्रेज था, वो टीवी सीरीज से आया था क्या? वो टीचर्स नाम की जो टीवी नहीं सीरीज नहीं, है। वन नाइट
we were sitting in our room. रात को मूवी नाइट होती है, तो that was movie night, but हम लोग मूवी नहीं देखते थे. तो suddenly we stuck with the idea कि सिविल में इन आवर कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा कैंपस प्लेसमेंट नहीं है. तो सिविल में ऐसा क्या है दैट वी कैन डू राइट नाउ. मतलब सिविल में एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट. 5 year 10 years एक्सपीरियंस कहीं ऑफ कैंपस इफ यू वांट टू अप्लाई, तो वो सब चाहिए होता है. तो वी थॉट कि मतलब थिंकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट परस्पेक्टिव, हम लोग अभी क्या शुरू कर सकते हैं. लाइक CS वाले तो जो पढ़ रहे होते हैं, दे स्टार्टेड डायरेक्टली. if they have if they want to start a startup, बस एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, दे कैन स्टार्ट. और हमें क्या चाहिए, 1 करोड़ की मशीन, बुलडोजर और ये सब पता नहीं क्या क्या चाहिए. तो हम लोग दिन इन डे क्या स्टार्ट कर सकते हैं. तो वी थॉट कि हाँ, इंटीरियर डिजाइन मेक्स मनी, इट इज कनेक्टेड टू आवर पार्ट. और हम लोग सिविल से कैसे जोड़ सकते हैं. सो स्ट्रक्चर आता है एंड जस्ट एस्थेटिक पार्ट. तो स्ट्रक्चर तो वी कैन डिजाइन इन सॉफ्टवेयर, and aesthetic part we can control with AR and VR. That will make us good money. Startup का पहला आइडिया तो हमारा Hey Saurav, ऐसा है. hey Aman. हाँ, hey निशांत. We have यार, अपने Nishant Bhaiya startup with का us idea now. चल रहा है. Yeah, hi Nishant, how are you? Hey, actually I got vaccinated today morning, तो अभी थोड़ा सा Oh, फीवर है और थोड़ा सा लग रहा है, कमजोरी लग रही है. thank you So so much for coming in such a critical situation, बोलो तो. this Thank you was so so much. important. This was so important, yaar. When I was Yeah. in 3rd year and 4th year, like Aman and Saurav, you would remember we were discussing कि like हमको ये अब नहीं पता आगे क्या करना है. Our seniors were not that helpful, you know. तो You know, right. तो we discussed यार अगर ऐसा होता so that we could impart some knowledge to our juniors. So Yeah. that would be much better because वो same struggle करना that's very not advisable. Not advisable. Really, really. That's why I always wanted to have a wholesome guidance कि सबको ही एक बार मतलब हर एक aspect पे हमारे experiences थोड़े जान ले. Of course, whatever you wish to do, that will be individual attempt. But if you are doing something, of course, backed by the experiences of your seniors, so that's gonna be, I think, one of the best thing, right? So that's great. We should be grateful for Aman because he insisted me कि निशांत तुमको आना है आना है आना है. Yeah, right. So talking about a startup, do you guys know we were in 4th year and this is about Hostel 4. Like it's one of the biggest room of Hostel 4. It was my room. Luckily. So Saurav, I and 2 more of our guys were just sitting and thinking कि यार civil में placement नहीं हो रहा है. Companies are not coming. And then we thought कि कुछ करना होगा. In that time, you know, we didn't have the idea of switching to other branches or something like that. So we were thinking कि नहीं कुछ civil में करना है. Why should we change branch if I studied for 3-4 years? So we were sitting and thinking like 4 people together. So one point I would like to add here and let you know that whenever these ideas come from discussion and thinking, ठीक है, अकेले बैठ के you cannot. If anyone doesn't know Hindi, you can please let me know in the comments. I will switch to English because I have a habit of mixing up. I think everyone is comfortable here with Hindi. Bhaiya. Yeah, Please same with continue. me. So we were discussing, ठीक है, तो वो पहला point होता है because एक person, if one person is deciding ना, he might have some biases. कि मुझे ये पसंद आ रहा है अंदर से. 2-4 लोग होते हैं, they put their perspective into it. So this is one thing. Then the next is market research. You have to get out in the market, work for free initially. Don't expect money initially. Okay, work for free, understand the complications of the business, and then gather some data, customer You are insight. understanding the इतने market. This is also preferable कि एक बार legal norms भी जानना before going into it. वो बहुत major part play करता है. yes. So सारी information collect करने के बाद customer insight is very important here. Without customer insight, you cannot run any business, any startup. So yeah. So अच्छा, who am I? I didn't introduce myself. Sorry. Let them do. Nishu, please. Okay. Harsh, over to you. Okay. Anshu, please take over. You have some question, I see. Well, it will be very nice if you'll introduce Nishant to the audience. Okay. Sorry. I am a I'll get developer, it. guys. I am a developer at Wipro. Why I switched from civil? I was something happened with me. You know, when I was in 3rd year,
I was into social work and very different side of things. Not really into civil engineering. I was a first bencher initially, but soon I became a last bencher. You know, धीरे 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 I went back, metaphorically and practically. So one thing happened with me in third year. I got an opportunity in something called ISRE program by BIT Misra. It's called Immersive Summer Research Internship, ISRE. It happens every year for third year people. How many of you are from third year? We'll be going soon. Just 1-2 महीना का बात है. Perfect. तो चलो ठीक है. Then everyone should know this information. कि ISRE, remember ISRE, Immersive Summer Research Experience. मेल आएगा. People will miss. अभी तो शायद ना आए. So you guys might be lucky कि अगले साल से maybe शुरू हो जाए after vaccination. Because इसमें US जाने को मिलता है. Maybe September, October. Yeah. हाँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी आती है और फरवरी नेक्स्ट ईयर तक वीजा का प्रोसेस होता है. देन यू गो इन मई एंड जून जुलाई में आप यूएस में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में वहाँ के जाके विच इज वेरी गुड यूनिवर्सिटी लाइक कार्नेगी मेलन, फिर ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है. यू कैन चेक अप सम वेबसाइट. तो बिटोसा इज स्पॉन्सरिंग दिस. ठीक है, तो तुमको ज्यादा पे नहीं करना है. तो वन थिंग यू कैन टेक फ्रॉम मी, अगर मैं दे सकता हूँ आज, इज look for these experiences, अलग-अलग experiences in different things. One is ये abroad वाला मैंने बताया. Then when I went there ना, वहाँ पे civil अलग है. वहाँ पे civil is not code से, IS code से and books and वो सब नहीं है जो मुझे boring लगता था यहाँ पे. वहाँ पे civil is about coding. अच्छा. Yes, civil is about Everything coding. is tech related there. Yes, because तुम वो जो हाथ से कर सकते हो ना, you can do it in code within like 5 seconds. तो वो repetitive process नहीं होता है. तो जो पूरा IS code है ना, it's an algorithm, step by step guide, which you can convert it into a code. और for every repetitive process, you can use that code. तो US में ये सब चलता है. फिर वहाँ के लोगों के साथ रहने में and that experience is priceless, I tell you, it's priceless. अच्छा, कितना प्राइस लग सकता है? This experience, पेपर पे it might cost like 6 lakhs, but तुम्हारा अपना लगेगा 2 लाख से कम. So this is something I wanted to let you know. तो हाँ, about why I switched to computer science. So उसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग होती थी, right? I told you. तो प्रोग्रामिंग के बाद I thought वहाँ पे मुझे मार्केट स्पेस पता चला कि what is the effect of programming. और प्रोग्रामिंग हर चीज से लिंक्ड है. So if you don't know this, you cannot progress later in life. So US is like 30 years ahead of India in civil engineering. तो वहाँ पे जाके you can actually see all क्या हो रहा है. ठीक है, तो when I came back, I developed more interest in programming, and also the companies were also coming. So it gave me a perfect blend of opportunities. So I wasn't. How did I prepare for this? I wasn't, a good coder. So just हल्का फुल्का Accenture में try किया, नहीं हुआ. Then थोड़ी सी जलीलियत फील हुई. कि अरे मैं रिजेक्ट हो गया. I wasn't a bad student, I would call. तो वो थोड़ा सा वो धक्का लगता है ना. Then I started studying coding. ML का courses लिया. मोटे-मोटे शब्द होते हैं ना, machine learning, AI. These are very big, by the way. I just understood कुछ थोड़ा बहुत and I just wrote it there CV में. जहाँ गया आंसर किया, Infosys में हो गया. Infosys is like level 8 tier. Level 1 job के लिए. What do you call in BIT? There are 3 levels, no, for placement. Yeah, type 1, type 2 and all that. तो type 1 में हो गया तो थोड़ा confidence आया. Then I sat for type 2. That is Wipro, Info, and then बहुत सारी companies आई थी बाद में. I don't remember. फिर Wipro में हो गया. So and now I'm gaining some experience, and जितना experience मिल जाए उतना, that is a bonus for me right now. So this is my perspective on leaving civil. Okay, I'm not forcing you. I'm just telling you this is what happens when you leave civil. You are on your own. तुम्हारा degree काम नहीं आएगा. Right. One will look at, oh, you studied from BIT, Mr. Oh, but you got civil. So no big companies will hire you. Amazon नहीं hire करेगा, Microsoft नहीं hire करेगा, Google नहीं hire करेगा. For the first 3 years, वो नहीं hire करेगा. You have to get experience from some companies. फिर
फिर तुम जितना सीखते हो वहां पे, यू पुट योर वर्क इन वीकेंड्स, डेज में ही टाइम निकल जाता है। घर में अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, टाइम निकल जाता है, यू लर्न समथिंग एंड देन ग्रेजुअली यू मे स्विच एंड फिर गूगल भी इनवाइट करेगी। सो this is something I wanted to tell you about. Anyone has any questions, or anyone who is interested in this IT field or is thinking about, let me know in the chat section. Yeah, they will get back to you, Nishant. I will request the moderators to come up now. Yes, And please stay back with us, Nishant, for a few more time, if you're fine. I am here for 10 more minutes. I'm sorry. Oh, is it? So I will request the moderators to ask questions to Nishant first, because there might be here many number of people who actually have got civil by chance and may be interested in coding field. So they can definitely listen to Nishant because he's much experienced in this, also having an idea of startup. So of course, you can come up with questions, anyone in the chat box. And luckily we have Kundan with us. Kundan, as you can see in the screen, is smiling. He's also a person from civil engineering, but later he joined in one of the coding companies, a software company. So Kundan, would you like to introduce yourself, please? Hey, hello everyone. My name is Kundan Kumar from VIT Mishra, Civil Engineering 2K16 batch, same batch as Vishwas. And currently I'm a data analyst scientist at Micro Start. भैया आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, आप थोड़ा कुछ हाँ, तो currently I am a data analyst at Micro. Micro is a startup company. I am from 2K16 batch. We are glad to have you भैया here. Thank you. भैया आप भी कोडिंग में जॉब किए? Hey Kundan, कोडिंग एनालिटिक्स कह सकते हो. someone is asking in the chat, भैया कोडिंग इंटरव्यू के बारे में बता दीजिए. Maybe you can also talk about your interviews and then I will अच्छा, talk about तो mine. मैं अपनी इंटरव्यूज के बारे में बता देता हूँ. अब मैंने बहुत सारे कंपनीज के लिए अप्लाई किया था, पर आई थिंक मोस्ट मतलब मैंने लिंक्डइन पे ज्यादा अप्लाई किया था. तो क्या हुआ, तो बहुत सारे में एक्सेप्ट नहीं हुआ था. तो फिर ये माइडो या बीआईटी मिश्रा के थ्रू आया था, उनका कोई गूगल फॉर्म था, वो मैंने भरा. फिर उसके बाद से मेरे रिज्यूमे के थ्रू फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन हो गया था. फिर उन्होंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था. वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी भी मेरे पास होगी, अगर किसी को चाहिए डेटा साइंस से रिलेटेड है तो मैं शेयर कर देता हूँ. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या क्वेश्चन था मैं शेयर करता हूँ. तो उसे मैंने सॉल्व कर दिया, 1 वीक का टाइम था. फिर उसके बाद कॉल हुआ, कॉल पे उन्होंने पूछा कि मैंने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया. फिर उसका प्रोसेस उन्होंने पूछा. फिर वो फर्स्ट कॉल था वो हुआ. फिर उसका फिर 1 वीक बाद एक और कॉल हुआ. फिर उन्होंने और कुछ क्वेश्चन पूछे कि एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ क्वेरीज बनाने के लिए बोला और कुछ कोड एक्सप्लेन करने को कहा. ये सेकंड में इंटरव्यू हुआ. फिर थर्ड इंटरव्यू हुआ था फाइनल सीईओ के साथ. तो सीईओ ने पूछा कि मेरे प्लान्स क्या हैं, पैशन क्या है, वो सारे क्वेश्चंस पूछे. फिर उसके बाद जाके फाइनल सिलेक्शन हुआ. 1 मंथ हो गया था तब इस सारे प्रोसेस में, प्रोजेक्ट बनाने से लेकर सिलेक्शन इंटरव्यू का ये प्रोसेस था. And Kundan, everyone, मेरा इंटरव्यू was a very systematized because मैं विप्रो में अप्लाई किया था. तो वहाँ पे और विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, टीसीएस आया, तो वो भी अगर ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ भी जो भी ऐसी कंपनीज आती है, इन्फोसिस में भी आती है आईटी की प्रोफाइल. विप्रो के बाद वही आई थी इन्फोसिस की. तो वहाँ पे भी स्टेप वाइज होता है. पहला होता है मेंटल एबिलिटी, जो कि शायद सारे इंटरव्यूज में होता है. और फिर दूसरा राउंड अलग अलग होता है. तो मेरे में क्या था कि मेरे में एसक्यूएल डेटाबेस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे, उससे लिंक था कुछ प्रोग्रामिंग. 2 प्रोग्राम थे, कोई भी मेरा एक बना, मैं सेलेक्ट हो गया. दोनों बना दो, बहुत अच्छा. कोई भी कुछ भी बन जाना चाहिए, ठीक है. इट्स नॉट वेरी टफ, बेसिक्स है. आई वुड से अगर 2 हफ्ता ढंग से दोगे प्रोग्रामिंग को बेसिक से, यू विल गेट इट, वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है. उसके बाद ऐसे ऐसे कुछ राउंड था, ऐसे राइटिंग रोज राउंड, यू हैव टू टाइप आउट 200 वर्ड्स. ऐसे ये सारा एक ही दिन में हुआ, बाय द वे, एक ही सेटिंग में. तो मैं बैठा वहां पे, मैंने मैथ क्लियर किया, फिर मुझे वो उसके लिए बुलाया गया, एसक्यूएल, देन प्रोग्रामिंग, देन ऐसे, देन आई वाज डन, देन लिस्ट आ गई. इंटरव्यूज. सो व्हाट हैपेंड इन इंटरव्यूज, वन क्वेश्चन यू विल गेट इज, you are from civil, why do you want to switch to IT? This is the most common question if you are switching branch. कुछ भी किसी में भी switch करो, बस if you are switching from civil, क्यों switch किए, why not contribute in civil, इतने साल पढ़ लिए, why do you want to waste it?
you have to reply genuinely. My genuinely was, my answer was I am not interested in civil. और मैंने अपने एक्सपीरियंसेस और इंटर्नशिप से देखा है कि मुझे कंप्यूटर साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैंने उसकी नॉलेज एक्वायर की और मुझे लगता है कि आई कैन अपडेट माई स्किल्स रेगुलरली. कीवर्ड्स फोकस, अपडेट माई स्किल्स रेगुलरली. आईटी इंडस्ट्री में people need skill updation. Every year some software is changing. And if you are not able to learn the new software, तो तुम्हारी जॉब जा सकती है. But if you are learning, मतलब तुम्हारा वो mindset है कि you can learn, तो फिर तुम आराम से you can thrive in software industry. And Kundan is doing exactly that. I must tell you, Kundan has been promoted. How do you guys know? In this 10 months or 12 months, 1 year. Congratulations भैया. Great Kundan. थैंक यू. अरे एक्चुअली मेरी कंपनी में थोड़ी अलग थी, जैसे निशांत ने बताया ना, और वो बड़ी कंपनीज की बात कर रहा है, तो मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया. तो स्टार्टअप में किसी ने भी मुझे नहीं पूछा कि मेरी ब्रांच क्या है. उन्होंने बस क्यों ये देखा कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं, और क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहा हूँ. तो आज तक मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो ही गया, तो किसी ने भी ब्रांच पूछा नहीं कि मेरी ब्रांच क्या है. तो और सीखने के लिए स्टार्टअप बहुत सही होता है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है और अलग अलग टाइप का काम होता है. How to build up resume to apply for IT jobs from a core branch. You will write civil. So maybe Kundan, you can also add something, but I will add 1 or 2 points here कि कुछ experience होगा. मेरा एक internship था, somehow link था, but उन्होंने पूछा कि ठीक है तुमने प्रोग्रामिंग की है, बट वो ब्रांच कौन सा है जिसके थ्रू गए थे, वो तो सिविल ही था, तो वो भी उन्होंने नेगेट कर दिया. तो ये सब सर्विस बेस्ड कंपनीज जो बिग कॉर्पोरेट्स होते हैं, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, कॉग्निजेंट, ये सब इस बेसिस पे लेंगे कि तुम वो इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं. एंड सम कुछ क्वेश्चंस वो टेक्निकल राउंड में पूछेंगे, एसक्यूएल डेटाबेस क्वेरीज वगैरह, वो आंसर कर पा रहे हो कि नहीं. दैट इज बी जेन्युइन. जो लिखो, if you want you can get my email and I will also send you my resume. अपने moderator से you can catch up with that. भैया, what are the prerequisites for the ISRE program? Do you have to give any prior tests in the college for it? और I think civil से 2 seats होती हैं, मेरे टाइम में 2 seats थी. No exams, 7.5 या 6.5 के ऊपर GPA होना चाहिए, कुछ एक है कैटेगरी. और फिर अगर ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो टॉप 2 को लेगा. दैट इज द थिंग. अच्छा अमन एंड सौरभ, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ बिफोर दैट. ओके, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर सिविल गेट. भाई आप कंटिन्यू कीजिए ना. Getting back to Navneet's question about ISRE, of course it's all about CGPA. So if you're having a good CGPA, then you'll definitely be selected. Perhaps if you are having a good speaking skill, then हाँ, इंग्लिश इंटरव्यूज भी होता है. दैट्स थैंक्स अमन फॉर दैट. जो एचओडी है अब्रॉड यूनिवर्सिटी के, दे विल इंटरव्यू यू बिकॉज तुम टॉफल या कुछ जीआरई क्लियर करके तो नहीं जा रहे हो, तो वो कुछ टेस्ट तो करेंगे. जनरल इंटरव्यू होगा, पूछेंगे क्यों आना है, क्या. यू विल आल्सो हैव टू फाइंड योर रिसर्च टॉपिक. तो तुम फॉरेन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाओगे, उनके प्रोफेसर्स के प्रोफाइल खोलोगे, उनके टॉपिक्स देखोगे, कौन कौन से टॉपिक्स पे वो रिसर्च कर रहे हैं. तुमको जो पसंद आएगा तुम उससे रिलेटेड टॉपिक दोगे, सो दैट दे विल टेक. ऐसा टॉपिक मत देना कि उनके पास हो ही ना, रिजेक्ट कर देंगे. तो वो रिसर्च करके जाना. यू कैन ऑल्सो गेट कॉन्टैक्ट मी लेटर ऑन. ओके कुंदन, you can talk about someone was asking about resume. How was your resume? Acha, you told ki you were only skill based, no? That's the blessing of startups. Startups, right? तो बहुत कुछ सीखना है ना कम टाइम में, तो स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हैं. Exactly. Corporate में it slows you down. Yeah, and resume को बहुत ज़्यादा अपीलिंग या HR के लिए ज़्यादा अपीलिंग बनाना है, तो क्या कर सकते हैं निशांत एंड कुंदन, you can go first. मेरे पास एक तो रिज्यूमे हो गया, मैं यहीं पे शेयर कर देता हूँ फाइल्स, वो तुम लोग देख सकते हो. तो बेसिकली मेरे रिज्यूमे में छोटा सा पोर्शन एजुकेशन का था, जैसे बिरला या क्लास 10 में कितने मार्क्स थे वो. फिर एक बहुत मेजर पोर्शन 50% ये था कि मैंने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, बहुत सारे. और प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो रियल लाइफ एप्लीकेशन, अगर तुम उस लिंक पे क्लिक करो तो उस प्रोजेक्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो. ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए थे जो प्रोडक्शन में, तो उससे बहुत फायदा होता है. राइट. एंड निशांत, मैं पूछूं कि एचआर को अगर अपील करना है तो मतलब कैसे, कौन से क्वालिटीज दिखाने चाहिए फॉर अ कोडर टू जॉइन? फर्स्ट मेक क्लियर कि तुम जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो उसके क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं.
मेरे कंपनीज में यूएस से क्लाइंट्स आते हैं, यूएस यूरोप से मैक्सिमम क्लाइंट्स आते हैं, 90% क्लाइंट्स वहीं से आते हैं। तो मेरा जो एचआर है, ही वांटेड मी टू, मतलब he didn't tell me, of course I understood कि he wanted me to have good communication skill, तो and talk in English properly, वो सब उनके रिक्वायरमेंट्स होती है, रिटन रूल्स होता है। सो वो था। एंड देन अच्छा, आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। मैं सिविल से था, ठीक है, एचआर पुट मी ऑन होल्ड। ये लड़का सिविल से है और विप्रो की बात हो रही है, लास्ट राउंड, आई एम द लास्ट कैंडिडेट। उन्होंने मेरे को नीचे कर दिया है, पर्पसली नीचे कर दिया बिकॉज मैं सिविल से हूँ। एंड देन एचआर से आता है, यू आर होल्ड, एंड एवरीवन इज कांग्रेचुलेटिंग ईच अदर। उसे लोग सेलेक्ट हो गए, कुछ आईटी से, कुछ प्रोडक्शन से, दे आर सेलेक्टेड। आई एम लाइक क्या हो गया, रिजेक्ट कर देता या सेलेक्ट कर देता, बीच में क्यों फंसाया। और ये वो होल्ड क्यों किया, वो रिजेक्ट भी कर सकता था, बट वो होल्ड इसलिए किया बिकॉज आई स्पोक वेल, आई डिफेंडेड माई सेल्फ वेल। तो वो तुम्हारे स्पीकिंग स्किल्स आएगा, ठीक है। और मैंने अपना जो सीवी बनाया था ना, दिस में बी यूनिक बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, उसको मैंने ग्लॉसी पेपर में प्रिंट कराया था। Yeah. And For the ones who metaphorically and for the ones जो HR या human resource manager round के बारे में नहीं जानते, in every placement, even if you are actually passing out the screening test and even you have just cleared the technical test, if HR is gonna select you, then only you're there for the company. Otherwise, no. That's the final round. और उसमें since it's the managerial skills को test किया जाता है उसपे, तो एक मतलब वो जो एचआर मैनेजर्स होते हैं बहुत बड़े, मैं बोलूँ तो कंप्यूटर होते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ क्वालिटीज और इफ्स एंड बट्स चलते रहते हैं और बहुत अलग अलग सिचुएशंस तुमको देंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अगर तुम्हारी क्वालिटीज उनको अच्छे लगे एंड इवन योर परसिवरेंस, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा। एंड आफ्टर एचआर राउंड आई थिंक दैट यू आर गोना बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी, सो दैट्स द फाइनल राउंड। निशान भैया, आपके लिए क्वेश्चन था, कौन सा बेयर मिनिमम क्या कोडिंग का जॉब के लिए चाहिए, कौन से लैंग्वेज सीखने चाहिए, एल्गोरिदम, डीएस एल्गोरिदम पे कंसंट्रेट करना चाहिए, बेयर मिनिमम क्या है कि कोई बच्चा जो बीआईटी में आया है वो एक आईटी जॉब लेके निकल जाए सिविल ब्रांच का? बेसिक से शुरू करो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करो। कौन सी प्रोग्रामिंग? सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। मार्केट रिसर्च करो। मेरे हिसाब से मैं जावा में कंफर्टेबल हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल में जावा था। कुंदन के हिसाब से वो पाइथन में कंफर्टेबल है, क्यों? क्योंकि पाइथन फ्यूचर की लैंग्वेज है और उसको बहुत इंटरेस्ट है उसमें। सबसे पहले कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, उसको अच्छे से सीख लो 1 month 2 month। उसके बाद तुम कोई भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे ना, तो आई थिंक 1 या 2 वीक ही लगेगा, उससे भी तुम सीख जाओ। तो एक को अच्छे से सीख लो पहले। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद फिर तुमको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। प्रॉब्लम्स आर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, कंप्यूटेशन परम्यूटेशन के कुछ एग्जांपल्स हो गए, कुछ बेसिक एग्जांपल हो गए यार। इसमें फॉर लूप लगाना है, कुछ रेपिटेशन के टास्क हैं, उसको ऑटोमेट करना है प्रोग्राम से। एक फॉर लूप लगाने से वो रेपिटेशन हो जाता है। यहाँ से बेसिक से डेवलप होता है धीरे 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 धीरे। यू स्टडी। कुंदन, कुछ वेबसाइट्स वी कैन टेल अबाउट प्रिपरेशन। एक तो मैं कहूँगा, तुम लोगों ने कोडशेफ के बारे में सुना होगा ना, उसमें 2 या 3 स्टार तक पहुंच जाओ, उतना बहुत है हमारे लिए। इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। बस हाँ, कुंदन बहुत ज्यादा बोल दिया। बहुत ज्यादा बोल दिया, उतना भी जरूरत नहीं है यार। हाँ, अगर तुम यस, कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो और इसमें बस वीकली एक होता है कंपटीशन, उसमें पार्टिसिपेट करो, उतना बहुत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, फिर कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैथ्स क्वेश्चन होते हैं, कर लोगे। इंजीनियर हो, ऑलमोस्ट इंजीनियर हो, कर लोगे। होता है, लगेगा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, सबके हिसाब से अलग अलग, बट कर लोगे। इजी है, मुश्किल नहीं है। जिसको करना है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, वैसे नहीं कि मेरी वजह से सिविल चोटी। Okay, Nishant, there is some formal questions for you. Okay. Which is a better hangout place, either Chatu Dhaba or Lakshmi Canteen in BIT? Ask the wrong guy से। अब हम लोग कहाँ जाते थे? Do you remember? मैं नहीं जाता था बाहर। नहीं, हम पता है, हम कुछ वॉक्स में निकलते थे। अमन वाज ऑलवेज स्टडिंग, ठीक है, अमन वाज ऑलवेज स्टडिंग सिविल इन हिज रूम, और सिविल, और सौरभ वाज आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग ना। तो जब ये लोग फ्री होंगे तो हम लोग कभी कभी चल जाते थे।
But no, पता है हम कहाँ ज़्यादा जाते थे? तुम लोग वो बनियान ट्री देखे होगे ना हॉस्टल 4 के बगल में, जहाँ पे बहुत सारे ठेले रहते थे वहाँ पे। हाँ हाँ भैया। जैसा आई थिंक 2 मिनट्स वॉक बाय से और उसके बाद ऑफ कोर्स डिनर के बाद तो वॉक होता ही था। बट आई थिंक तुम लोग शर्मा ढाबा मिस कर दिया, वहाँ का समोसा चाट जरूर खाना। पर्सनल रिकमेंडेशन। लॉकडाउन खुला तो श्योर खाएंगे भैया, वरना। सो भैया Hopefully एक और क्वेश्चन है भैया, जैसे कि सुबह का 8 AM पे क्लास होता था हम लोग का भी, आप लोग का भी हुआ होगा, तो कभी कभी ब्रेकफास्ट मिस हो जाता था उसके मतलब 8 AM की क्लास के चलते, तो कभी आपका वैसा हुआ है? संडे को मोस्टली होता था, क्या होता 8 है AM नहीं, लेकिन सौरभ? संडे को मोस्टली 10 AM में होता था। सच बता दे। हुआ ऐसे है मेरा तो बहुत नहीं बार होता miss। था, आई वाज वेरी पंक्चुअल। सो अमन इज वेरी पंक्चुअल यार। अमन यार मतलब 8 बजे मतलब 7:30 पे रूम छोड़ देना है। आफ्टर हाँ सच में। ब्रेकफास्ट के लिए अलग से जाना है। हाँ हाँ तो मेरा बहुत बार छूटा है यार। आई एम गिल्टी ऑफ दैट। हेल्थ को मैंने ध्यान नहीं रखा। आफ्टर यू लीव कॉलेज यू विल अंडरस्टैंड कि देयर इज यू हु इज गोना टेक केयर ऑफ योर लाइफ, सो यू हैव टू अडॉप्ट सम हेल्दी हैबिट्स। अभी ठीक है, अभी एंजॉय करो। अगर कॉलेज में होते तो अभी घर पे ट्राई टू बी यस हेल्दी, भैया। ट्राई टू बी हेल्दी। बट हाँ छोड़े हैं यार, बहुत छोड़े हैं। सैड ट्रुथ। निशान भैया सॉरी टू इंटरप्ट, एक स्टोरी आ रही थी आपके बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में, हमें वो सुननी है। ये किसने बताया? अमन? नहीं मुझे तो पता भी नहीं कौन सा बर्थडे। सच में नहीं पता है। मेरा प्लीज भैया। बर्थडे, मैं बहुत इंट्रोवर्टेड हूँ। मैं अभी बोल रहा हूँ but मैं बहुत इंट्रोवर्टेड हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। आई वाज अ फर्स्ट बेंचर। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। आई डिडंट नो इन सबका नाम क्या था। सो बर्थडे निकल गया, किसी को पता नहीं चला। सेकेंड ईयर में स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स। तो बर्थडे आया एंड समहाउ पीपल नो। फेसबुक में छूट गया होगा गलती से, या ट्विटर, समहाउ कुछ कुछ गड़बड़ हो गई। तो somehow no, they knew it, and then मेरे को ये लोग I think you know ना क्या होता है। everyone knows क्या होता है, especially with हाँ मैंने boys. अभी इंट्रोड्यूस किया है, पिटाई होती है। Girls would not पिटाई के know. अलावा भी कुछ हुआ था। Saurabh. पोल डांस। Oh God. हुआ ये था कि ये लोग मुझे रूम से निकाले। I thought ठीक है यार, पहली बार है तो थोड़ा प्यार से, बट नहीं दे। कोई हाथ पकड़ा, कोई पैर पकड़ा। इट वाज दिसंबर, तो कोई पानी फेंक दिया सर्दी में। इट वाज रात के 12 बजे रहे ना, पानी फेंक दिया, ठंडी है। कॉरिडोर में उठा के ले जा रहे हैं, समवन इज किकिंग, इधर उधर किकिंग चल रही है। फिर बाहर लॉबी में ले जाके दे स्टार्टेड प्लेइंग सम सॉन्ग्स। मैंने कहा यार सॉन्ग बजा रहे हैं, इंग्लिश इंग्लिश सॉन्ग, लाइक हिंदी या नॉर्मल में नहीं, भोजपुरी सॉन्ग्स। सो दे लगा दिए रेडियो पे and they told me to sing round banali. So God, that was very embarrassing, and someone got a video. I'm still searching for that person. But इससे एक और इंसिडेंट याद है about birthdays. I was in US. I have a Peru friend from Peru, and we were just hanging out, having a dinner outside in a restaurant. So she asked me, what how do you guys celebrate birthdays? So I told him normally, yaar, cake kaate hain. So she said, really? Because I have heard that Indians celebrate birthdays by bashing each other. So you guys, congratulations, have made it so popular that India is known as a country who bashes people on birthdays. Amazing. That's something fun. That was really nice to hear भैया। ये हम लोग अपना नाम रोशन कर रहे हैं इंटरनेशनली। All right, I have got a lot of, you guys have got a lot of questions on GATE and Core Civil. If you want to contact me, you can just get my email ID. I will just type it out. Oh, I think you guys have disabled the chat. Oh, no problem. You can ask a moderator. And Okay, we'll be getting there to the gate questions. Oh, let's get there only ना। Okay, अमन भैया। I will be leaving now. I'm sorry. Okay, भैया I've got chat a is on. certification exam. Chat is on. You can write email over there. Chat is on. You It guys, was great to have you, Nishan भैया। it was lovely experience, bro. Bye bye. Thanks अमन भैया, Yeah. I'll continue। आपसे कुछ अब core questions है, as we say। Study materials for GATE, इस पे आप कुछ points रखिए। टू बी वेरी जेन्युइन, अगर स्टडी मटेरियल्स की बात की जाए
So I think even the textbooks that you have gone through during your class hours or during your class preparations, वो भी बहुत बड़ा चीज़ है, and I think मेरे लिए वही काम किया. उसके बाद you can go for some postal courses जो कि बहुत ज़्यादा available है. Made Easy है, Ace Engineering Academy है, Gate Score है, and बहुत कुछ है. तो you can go there and वहाँ जा करके I think उन चीज़ों को पढ़ करके you will get land up with rich resource for any of the competitive examination. भाई आप प्रिपरेशन कब शुरू किए थे? क्योंकि मेरा एक अटेम्प्ट पहले ही हो चुका था इन 2020 में भी. हाँ, तो उसमें जो है ज़्यादा टाइम नहीं मिला था क्योंकि प्रोजेक्ट भी था, फिर कोविड भी आ गया. कोविड नहीं आया था उस समय तक, बट एक डर था क्या आ जाएगा. और उसके साथ कि बहुत सारे हमारे वो कुछ प्रिपरेशंस चल रहे थे, अलग से ही क्लासेस हो रहे थे हमारे. और वो क्लासेस इसलिए थे ताकि हम लोग का वो रीजनिंग थोड़ा डेवलप किया जाए. एंड द क्लासेस वेयर एक्चुअली फॉर प्लेसमेंट्स. तो उस पर कंपल्सरी 1 आवर 2 आवर देना था, और ऊपर से 26 क्रेडिट्स, आई मीन 5 थ्योरी पेपर्स एंड 4 लैब्स. तो बहुत मुश्किल था, बहुत हेक्टिक था. बट उसके बाद थोड़ा टाइम निकला 2020 में, तो थोड़ी पढ़ाई हुई. तो उन चीज़ों के साथ जब 2021 में स्टार्ट ऑल्सो विद एमटेक इन IIT गुवाहाटी, थोड़ा मुश्किल हो रहा था बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यू नो, क्योंकि वहाँ पे असाइनमेंट्स बहुत मिलते हैं. इवन फॉर द लैब्स बहुत सारे असाइनमेंट्स मिल जाते हैं. तो उसके साथ करना थोड़ा मुश्किल था. बट मैं धीरे धीरे सैटरडे संडे में टाइम निकाल के 1 आवर 2 आवर मैं पढ़ता गया. बिकॉज आई नो कि कंसिस्टेंसी समथिंग जो सब कोई लैक करता है, बट वो नहीं छोड़ सकते. इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि आगे जाके वही काम आएगा. तो वो चीज़ मेरे को मेंटेन करना ही पड़ा. और उसमें आई वाज वेरी मच ओबियस एंड ओबीडियंट कि मैं उसमें बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस नहीं करूँगा. फिर दिसंबर जनवरी इट वाज अ हॉलीडे टाइम बिटवीन एमटेक सेमेस्टर्स. तो मैं उस टाइम में पढ़ा. आई बेसिकली फोकस्ड ऑन माय थ्योरी कोर्सेज, और उसके बाद फिर थोड़े न्यूमेरिकल्स एंड देन फाइनली टेस्ट सीरीज. तो इसी से शायद काम हो गया. Coming to that, भैया, how important is a test series during a preparation? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. आई थिंक जैसे बोलते हैं ना कि जैसे कभी कभी बोलते हैं कि यू कैन बी जैक ऑफ ऑल आर्ट्स बट मास्टर ऑफ नन, ऐसा. तो इफ यू हैव theoretical knowledge, if you have solved numericals in the classes, you could be a topper as well. But इसका मतलब ये नहीं है कि you are going to rock even in the competitive examinations. वहाँ पर क्या important है is time management. And एक चीज हमेशा याद रखना, it is the time management which decides who's going to be the topper in GATE or ESE like that. तो जो time management अच्छे से practice करता है तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर सकता है. एंड उसके लिए डेफिनेटली टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जिन्होंने नहीं लिया है अभी तक, जो प्रिपेयर करने जा रहे हैं, प्लीज गो फॉर टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज से ही प्रैक्टिस कीजिए. दैट वुड बी नाइस. भैया कितना समय लगता है पूरा सिलेबस पढ़ने में और रिवाइज करने में? वेल, अगर इफ यू आर अ क्विक रीडर तो 1 महीना मैक्सिमम लगेगा, और नहीं तो टेक टाइम. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ जल्दी 10 दिन में या 15 दिन में ख़त्म करना है. टेक टाइम, एंड जितना ज़्यादा टाइम आप लीजिएगा उतना ज़्यादा बेटर आपका परफॉर्मेंस होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि इट्स जस्ट लाइक कि जब मतलब जितना ज़्यादा टाइम होता है ना, हमारे रिविजन स्किल्स उतना बढ़ जाता है. और जितना ज़्यादा रिविजन स्किल्स होगा, यू नो कि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सबको एक साथ याद करना बहुत मुश्किल हो सकता है. लेकिन उसके बाद भी अगर आप रिविजन में टाइम दे रहे हैं, टाइम लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बहुत बेस्ट होगा. सो स्टार्ट जस्ट 1 year बिफोर व्हेन यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू टेक अप एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. क्योंकि वो जो 1 साल है, 4th year, दैट इज गोना डिसाइड व्हाट यू विल बी आफ्टर दैट, वेदर प्लेस्ड, अनप्लेस्ड, वेदर of course you're going to excel in competitive examination or not. वो 4th year के टाइम को कभी वेस्ट मत करना. That is very important. भैया what was the revision strategy? मैं बता दूँ, we all are humans. तो बहुत सारे ऐसे questions आते हैं कि मैं तो पढ़ा और 1 हफ्ते बाद भूल गया. My God, ये सबके साथ होता है. You are not the new one. तो ये होता है. तो अब एक बहुत कॉमन है, अगर आप एक सेमेस्टर में भी वो चीज़ पढ़े, जस्ट वो एग्जाम दे के आओ और आपसे पूछो कि क्या आपको ये आता है, तो वो बोलेगा नहीं मैं भूल गया. इट्स वेरी कॉमन. तो इस चीज़ के लिए रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रैटेजीज में ये हो सकता है कि एवरी डे, सपोज यू आर हैविंग अ फिक्स्ड शेड्यूल ऑफ स्टडी फ्रॉम 7 to 9 सपोज,
तो अगर आप 7 से स्टार्ट कर रहे हो, डिवोट 10 minutes or 15 minutes on revision part what you have started just in the beginning of that topic. मैं पूरा सिलेबस नहीं बोल रहा हूँ, that topic. मतलब अगर आप सपोज स्टील का कोई चीज पढ़ रहे हैं, जैसे कनेक्शंस पढ़ रहे हैं, तो 10 से 15 मिनट में कनेक्शंस के सारे फॉर्मूले देख लीजिए और उसके बाद स्टार्ट विथ योर न्यू थिंग, मतलब जो भी नया चीज पढ़ना है आपको, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग. और मेरे लिए यही काम किया, रिवाइज करते गया, और इससे पता है द बेस्ट थिंग इज दैट तुम्हारा मेमोराइजिंग पावर बहुत बढ़ जाएगा. एंड हर एक इक्वेशंस जो है ना, उसमें तुमको टाइम नहीं लगेगा रिकॉल करने में, और गेट में वही चाहिए. नाइस. एक सवाल था, थोड़ा इररिलेवेंट है गेट से, लेकिन स्टिल अपना एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए भैया. आई सिविल में आप थे. आई सिविल मैं बोलूँगा इज अ कैनोपी फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑफ BIT मिश्रा, इसलिए क्योंकि आई सिविल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें एक मतलब खुद के क्वालिटीज को डेवलप करने का एक मौका देगा. लाइक आई मे कांग्रेचुलेट यू हर्ष, अंशु एंड इवन मुस्कान वाज देयर. तो इन सबको मैं देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आई एम जस्ट बैक इन माय दोज डेज. आप मतलब आप लोग तो एक कन्वर्सेशन स्किल्स बढ़ा ही रहे हो. दूसरा, उन लोगों के लिए भी एक अशरिंग पॉइंट आ रहा है जो लोग कहीं आपको सुनना चाह रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. दूसरा, अगर आप कोई चीज़ मैनेज करते हो तो आपके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत बढ़ रहे हैं. वो मैनेजमेंट स्किल आपको ना केवल इस फील्ड में बल्कि हर एक फील्ड में काम आएगा. Like you're going to really relish the same thing in every field, whether competition or could be whether managing classes along with some preparation, managing job with some preparation. तो ये सब में आपको ये सारे skills बहुत काम आएंगे, और इसीलिए बहुत important है कि आप किसी क्लब में हो तो try to get best out of it. Of course that's not a compulsion, but II Civil was just a canopy for us. एक civil का feeling आ रहा था when we were a part of this. Thank you very much भैया. Now we'll be moving ahead. Anshu, please take over. Okay हर्ष, थैंक यू. सौरभ भैया, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है. Please give us an overview at a normal working day at NHI as a civil engineer. Okay. First of all, site engineer सिर्फ ये symbolize नहीं करता that you have to work on site, because most of my days it just I am on my computer at the office, and you have to handle all the data that are coming, not just the part of design. You have to also make it ensure that you are good at listening. So you have to make your communication skill much more greater in this field, because the people I am working here, they are mostly like 40 above. So you have to make your communication skill at that part. I would say कि मेरी mostly time तो calls and emails पे जाती है. That, and after that you have to check the designs that they are submitting, and site visits frequent है, that you have to check if the design are feasible with the site or not. Yes, so that's rapid. ओके भैया. भैया कोर के लिए कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है? That would be answered by Aman, because मेरा गुरु वही था कॉलेज में. ओके. तो अमन अरे भैया, यार गुरु मत बोलो. एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कि एवरी पर्सन इज इक्वल, और फ्रेंड्स में कोई गुरु नहीं होता. फ्रेंड्स में लेकिन अमन का नोट्स ही था जो पूरे सिविल ब्रांच को पढ़ाता था. अच्छा, आई शेयर वन मेमोरी. मुझे याद है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस के क्लास में जब 4th और 5th सेमेस्टर था हमारा, तब ऑल वेर प्लेइंग गेम्स और मोबाइल गेम्स, कुछ भी, जैसे उस समय का क्रेज है ना PUBG, इवन आज भी है, देन अरीना ऑफ वैलर, और कोई गेम ही लोग खेलते थे. आई वाज द ओनली वन हु वाज प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर दैट, एंड फिर सब उसी से पढ़ते थे. तो दैट वाज रियली ग्रेट फॉर मी. बट मतलब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि सौरभ पॉइंट आउट कर रहे हैं फॉर दी कोर वर्क, कि यू शुड हैव अ कमांड ऑन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, दैट मींस स्टील एंड RCC, बिल्डिंग मटेरियल्स, कॉस्टिंग एस्टिमेशन. First, make your grip in RCC. Don't directly jump in steel. First, try to make your better sense in RCC. Whatever that comes under structural engineering is very important. And एंड आगे तो बहुत कुछ है, तो वो एक्सपीरियंस के साथ आता है. सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि डिफर करता है बिटवीन मास्टर्स इन एनी ऑफ द थिंग्स लाइक हायर स्टडीज में और कंस्ट्रक्शन फील्ड में, जो इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉस्टिंग एस्टिमेशन, एंड दैट होल पार्ट ऑफ these things, costing estimation and specifications.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. हायर स्टडीज में ओनली कमांड ओवर थ्योरी इज इम्पॉर्टेंट. I would like to that ये costing estimation में this you have to make the decision like very much quicker. The design that the vendor is submitting to you, you have to judge on the basis of their feasibility, but cost matters a lot. थोड़ी सी design can make the difference of 10-12 crores. So ये बहुत important है how you are getting the design, how you are submitting it and preparing, क्या software use कर रहे हो, and also Excel too is like God. Civil में for design, Excel is God for all the softwares. You should learn other softwares like STAAD and MIDAS, but make a good command in Excel. ओके भैया एक और क्वेश्चन था, जैसे कि अभी हम लोग मतलब 4th सेमेस्टर का लास्ट चल रहा है, तो उसमें कुछ लेबोरेटरी है जो जैसे हो गया सिविल इंजीनियर ड्राइंग, और एक और है सर्वेइंग, जो ऑन फील्ड थोड़ा करना अच्छा एक्सपीरियंस लगता है, और हम लोग का भी ऑनलाइन चल रहा है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं किस वक्त? AutoCAD. हाँ, AutoCAD. ऑटोकैड तो कर सकते हैं, बट द बेस्ट थिंग इज कि आप यूट्यूब वीडियोस देखो. इफ यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन सिविल इंजीनियरिंग, तो आई थिंक सर्वेइंग शुड बी योर लेफ्ट हैंड, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होता. तो फॉर सर्वेइंग आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू यूट्यूब वीडियोस, चाहे वो चेन सर्वेइंग हो, प्लेन टेबल सर्वेइंग हो, कंपास सर्वे हो, एंड इवन टू हायर सर्वेइंग मेथड्स लाइक टोटल स्टेशन एक्सेट्रा. उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपको एक फील्ड एक्सपीरियंस हो. बट ऑफ कोर्स थैंक्स टू कोरोना की ऐसा हो नहीं पा रहा है. तो मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि आप यूट्यूब वीडियोस देखिए, और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं. ऑफ कोर्स 80% नॉलेज तो आ ही जाएगा आई थिंक. ओके भैया. सौरभ भैया एक और क्वेश्चन आपके लिए, मतलब कोर का जॉब क्यों, व्हाई नॉट कोडिंग का जॉब, जो बाहर से थोड़ा लग्जरियस लगता है, लाइफ स्टाइल भी उसका अच्छा है, पैसा वैसा भी है. Thinking of long term, हमें लगा कि core would be beneficial, as Nishant also said. 3 साल पढ़ाई करने के बाद after 3-4 years अभी चेंज करना ये थोड़ा सा अजीब लगता है. So I thought कि अभी क्यों चेंज करें, we can work on it. और मेरे को चांस मिला कॉलेज में. I was selected in texture, that was to in structure engineer, but I rejected it. इसके बाद भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, मैं फेल हुआ. देन ऑफ कैंपस भी अप्लाई करा हमने बहुत सारा. देन एक पसंद का जॉब मिल गया, स्ट्रक्चर आई लाइक द मोस्ट, और इट वाज ग्रेट कि आई वाज गेटिंग द फील्ड एक्सपीरियंस विद द साइट एक्सपीरियंस एंड द सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस टू. एंड फिर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एट NHAI, तो आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर मी नाउ. If you are really interested कि you have to get a white collar job, it is not that civil is not getting you white collar job. You can sit at office and make your design. Even freelancing भी यहाँ पे opportunity है. If you are good at design, you can do the job while sitting at home, and अपने designs को you can sell to other vendors. They outsource this. So once if you want that just for the sake of sitting in the office for AC, if you are switching your job to other IT sectors, I wouldn't recommend that. If you are interested in civil, you can go with designer. Designer have to sit in the office with his computer, work on the software, and he can get a good paycheck after like some experience of 1-2 years. Okay भैया. And yes, if you are good in that, you can start your freelancing too. You are working with that, or freelancing is also a good option in this. ओके भैया एक और क्वेश्चन है, हाउ टू गो फॉर ऑफ कैंपस जॉब, कौन सा कंपनी है जो अप्लाई किया जा सकता है ऑफ कैंपस के लिए? I will share a list in that. मैंने अमन को दिया भी था, maybe he would have forwarded it to you. मैं एक लिस्ट शेयर कर दूंगा, but the foremost important thing is make a good resume with your experience. Like internships matters a lot. तो एक resume तो बना लो. I will share my resume too if you want. And Yes, apply yes. in like almost I searched in Google. मतलब I directly searched top 50 companies in civil. And फिर मैंने सबको जो contacts मिले, either telephone, email, LinkedIn, मैंने सब पे apply करा. Like 50 companies तो मैंने भरे ही होंगे. तो fill in most of the things. और teacher से contact कर सकते हो. Like Indrajit Roy also sir also guided me a lot.
he also gave me some contacts. तो मैंने fill करा बहुत सारे जगह. तो if you are even 5% lucky, एक दो company से तो call आ जाते हैं. So foremost thing is make a resume and apply a lot in like 50, 100 companies, whatever you like. Okay. So Harsh, please take over from here. Nisha, Saurabh, you started with SA Consultancy Infrastructure, right? How did you switch to NHI? How did I switch? Okay, so my first thing I'll say, I got lucky. While working there, my client was NHI. Okay, so we used to design our designs, like we were the third party vendor who used to design for NHI. And there I got to interact with NHI employees a lot. Then I started site visit with them. And there I was in Delhi site visit. There I got a hold of manager at NHI. He sees my work. He also applauded me a lot for that. There was some structure design and they were going with, I think they were going with RCC girders, but I preferred something else. So they liked my design and they said, how much time do you have? Like, how much experience you have? So I was at that time 4 to 5 months in that company. So he liked my work and he said, if you are interested, there is a vacancy of site engineer. So because of that vacancy, I got lucky because their site engineer was leaving for some reason. And I applied with all my resume certificate. Also, this position is site engineer. You can only get it through GATE. So they took my GATE score too. Consider that. And if you are lucky, you can get that chance as I got. That was really great to hear. Yeah. कुंदन भैया, आपके लिए सवाल है. How is working at startup different from a regular MNC? Okay, तो MNC के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर निशांत ने जहाँ बताया, निशांत से मेरी बहुत बात होती है, और उसने कहा कि बहुत रिपीटेटिव टास्क भी होते हैं और ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, काइंड ऑफ स्टेल प्रोग्रेस होती है, मल्टी और सेम टास्क होते हैं. और स्टार्टअप में मेरे साथ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एनालिस्ट हूँ, राइट, तो कंपनी की जो भी चीज़ होती है, जो भी प्रोसेस होता है, मुझे सबके बारे में पता होता है. जैसे फाइनेंस के बारे में पता होगा, लॉजिस्टिक्स के बारे में पता होगा, फिर प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, तो हर एक चीज़ के बारे में. और उन्हें जो भी डेटा चाहिए होता है वो तो मैं निकाल के देता हूँ और ऊपर से एनालिसिस करता हूँ. तो डेली लेवल पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है. एक साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और ऐसी चीज़ें जो मैं एक्चुअल रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकता हूँ. तो ये डिफरेंस होता है. ग्रोथ बहुत फास्ट होती है स्टार्टअप. That was really great to hear, Bhaiya. Now we'll take questions from the audience. Whatever you want to ask, go ahead. Either unmute yourself or write in the chat box. जब तक ये लोग सवाल पूछ रहे भाई, हम पूछेंगे सबसे अच्छा मेस का खाना कौन से मेस का खाना है? हॉस्टल से कोई जवाब नहीं. वैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पहले से हैं, सो इफ यू अलाउ आई विल रीड थ्रू. प्लीज गो अहेड. यस, यहाँ पे है कि हाउ अतुल्या's क्वेश्चन, हाउ मच इम्पोर्टेंट इंग्लिश स्पीकिंग इज फॉर आई एम प्रीटी इनकम्पिटेंट. ये बहुत सही जवाब है. इंग्लिश देखो, इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, पर इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइवलीहुड नाउ. तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव टू बी फ्लुएंट व्हेन you are facing any interview or when you are even trying to respond to some of the things. तो काफ़ी फ्लुएंसी आनी चाहिए, बट ये ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलना ही आपके क्वालिटी को डिफाइन करता है. इफ़ यू आर ऑल्सो स्पीकिंग इन हिंदी, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर जस्ट सम वे बैक देन द इंग्लिश स्पीकर्स. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो डोंट कीप अ सेट बैक, do participate even though you are not having a good command over English language, and of course आप उसको डेवलप कर ही सकते हो. इफ सब लोग बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो तो व्हाई नॉट इंग्लिश, और उसको धीरे 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 अपने आप को और डेवलप करना है उस फील्ड में. एंड यहाँ पे GRE एग्जाम मैटर्स अ लॉट. लैंग्वेज कुछ भी हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है in actual practical life. Even if you are not good in English, अभी 4 साल है, you can get the hold with it.
A language is never a barrier. You can come up with any of the languages. I think Hindi, English, and whichever language you're comfortable. Because of course, इसीलिए तो हमारे पास technology है languages समझने के Of लिए. course, how you present it that matters. Like how you are presenting yourself. Right. And one more question by Lokeshwar is, what about GRE exam? Well, ये बहुत important है. If you are focusing for any of the foreign studies, तो आपको GRE exam तो देना है और उसमें अच्छा score करना out of 360. तो start preparing right away wherever you are. Like if you are in first semester or in third semester, wherever, अभी से शुरू करो because GRE needs some English skills and at the Okay. most important, yeah, and most importantly. GRE के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए बिकॉज यू नीड टू कवर अप सम मोर डिटेल थिंग्स जो शायद आपने अभी तक अपने पूरे कोर्स में 11th-12th कभी भी नहीं सीखा होगा. तो GRE के लिए अभी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है. एंड टिप्स तो मैं यही दूंगा कि जितने बुक्स हो सके उसको रेफर करो. कोई टॉपर के, अगर टॉपर नहीं तो कोई रेकमेंड कर रहा है कुछ भी, तो उसके मटेरियल्स को यूज़ करो सो दैट यू गेट मोर एंड मोर ऑफ इट. Well, the next question is how to build up resume to apply for it, jobs for the core branch by Lohitaksha. Well, the question goes very right कि resume दिखना कैसा चाहिए when you're applying for core jobs. Well, एक internship तो must है. If you have not done an internship, इसका मतलब ये नहीं कि आपका selection नहीं होगा. अगर आप जो है किसी कोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यू हैव टेकन अ कोर्स इन एनी ऑफ द फील्ड, जरूरी नहीं है ओनली इन सिविल बट कहीं बाहर के भी फील्ड पे आपने लिया है, डू शो दैट बिकॉज उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पर्सनालिटी पे. मतलब यू हैव नॉट लेफ्ट टाइम, यू हैव यूटिलाइज टाइम टू द बेस्ट पोटेंशियल, और वो बहुत जरूरी है. बहुत लोग थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद एक छोटा इंटर्नशिप करते हैं, नहीं तो एक प्राइवेट कोर्स के लिए जाते हैं. दैट विल एक्चुअली मेक योर रिज्यूमे बेटर. फिर जहाँ तक कोर की बात आ रही है, दे विल डेफिनेटली कम अप विद द टेक्निकल स्किल्स. तो आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है? इफ यू आर अ गुड मैनेजर, इफ यू हैव मैनेज्ड लॉट मोर ऑफ एक्टिविटीज, देन दैट्स रियली अ प्लस पॉइंट. डू ऐड दैट. और क्या क्या सर्टिफिकेशंस है अंडर योर नेम. सो इफ यू हैव लॉट मोर ऑफ सर्टिफिकेट्स, दैट्स अगेन अ प्लस पॉइंट. एंड अगर टेक्निकल इंटरव्यूज में आप जाओगे, दैट जो कि सेकेंड राउंड होता है, आई जस्ट मेंशन 3 राउंड्स होते हैं. फर्स्ट इज योर प्रिलिमिनरी राउंड जिसमें आपकी स्क्रीनिंग होगी बेस्ड ऑन रीजनिंग. दूसरा होता है आपका टेक्निकल, और तीसरा होता है HR इंटरव्यू. तो जो बीच का होता है दैट इज योर टेक्निकल. तो उसमें आपको स्टील से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, RCC से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस होंगे. मेरे साथ भी हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज के इंटरव्यू में. तो उन्होंने कुछ बेसिक चीजें पूछी जो आई वाज एबल टू आंसर, बट इवन दो you don't know how to answer it, don't say sir I don't know, because ये बहुत odd फील करता है. आप ऐसे बोलो कि sorry sir I'm not having enough knowledge about it but I'd like to give a try. ऐसा आप बोल सकते हो. और sorry sir I'm not able to comment on this, sorry sir I just skipped reading it, कुछ ऐसा बोलो. don't say I don't know, it's very awkward. so ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. Okay, भैया एक सवाल आया था चैट पे, हाउ इज लाइफ ऑफ एन NHAI साइट इंजीनियर? सर भैया. आई थिंक मैंने आंसर दिया था, शायद मैं रिपीट नहीं, करता हूँ. मतलब बहुत काम रहता है, कोडिंग से ज़्यादा काम रहता है, बस उस एस्पेक्ट में होगा ये सवाल. समिंग दैट अप, कॉल बहुत अटेंड करने होंगे तुम्हें. लाइक एक NHAI ऑफिस में मैं बताऊं तो NHAI के पास अलग अलग PIUs है. जो इन टोटल पूरे इंडिया में 172 PIU है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट. दे वर्क ऑन लाइक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एट देयर अटायर. एक जुरिडिक्शन है, एक लोकेशन है दैट दे आर बाउंड कि यहाँ पे कुछ भी रोड बन रहा होगा दैट इज अंडर योर जुरिडिक्शन. आपको उसको मैनेज करना है होल एंड सोल एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिफोर द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन. लाइक जब प्लानिंग होती है, DPR बनता है, एवरीथिंग दे हैव टू कंट्रोल. तो हमारे PIU में एट द टाइम आई ज्वाइन अभी 11 प्रोजेक्ट्स रनिंग है एंड एवरी प्रोजेक्ट्स में दे आर डिफरेंट सिनेरियोज. लाइक हॉर्टिकल्चर का काम चल रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स के ऑनगोइंग काम चल रहे होते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट के काम चल रहे होते हैं. सो फॉर एवरी प्रोजेक्ट यू हैव टू कोऑर्डिनेट विथ एवरी पर्सन इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो आपके जो वेंडर्स होंगे, यू हैव टू कमांड देम विथ calls, mails, WhatsApp, whatever. So you have to be in touch with them every time. तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है. आफ्टर दैट साइट विजिट्स इज लाइक मोस्ट कॉमन कि आपको वहां जाके प्रेफर करना है जो बन रहा है,
like how is it going for supervision and also for your decision making. Then also taking the NOCs, like if you are constructing something over railways and that, तो आपको एक मीटिंग अटेंड करना होता है, that is also very frequent. तो ये एक मैं बोल तो सकता हूँ कि हाँ जनरल 5 days काफी वर्किंग रहते हैं, बट इन सम PIUs यहाँ पे ऐसे भी केसेस है दैट दे आर लेस प्रोजेक्ट्स, तो वहाँ पे थोड़ा रहता है, बट 2 days you can get for your own, Saturday Sunday, and there you can prepare for something else that you want, either startup or some new exam that you are preparing, so you can get that weekend off. भैया एक और सवाल है चैट में कि हम लोग जो अभी सिविल में पढ़ रहे हैं उसका जो एप्लीकेशन जब हम लोग रियल लाइफ में जॉब में यूज़ करते हैं कितना डिफरेंस पड़ जाता है थ्योरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल इन कोर सिविल में? Core तो doesn't change at all. If you have the basic core knowledge, वो वही रहेगा. The system changes in the way how you implant it. आप जो पढ़ रहे हो एक्चुअल वो सारी चीजें यूज हो जरूरी नहीं है, बट कोर नॉलेज लाइक यू मस्ट हैव लर्न रिटेनिंग वॉल डिजाइन. तो आप जो वो पढ़ रहे हो ब्रिजेस यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, बॉक्स कलवर्ट्स सारे कुछ डिजाइन में बढ़ते जाएंगे, सर्वेइंग के डिफरेंट मेथड्स आ रखे हैं, तो सबकी जो मेन एक बेसिक है वो ऑलरेडी जो आपने पढ़ रखा है वही है. द वे ऑफ यूजिंग दैट वो बस बदला है. तो आपकी कोर नॉलेज तो बहुत मैटर करेगी. सो इफ ईदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट और ऑल दैट, आप जब प्रैक्टिकल सिनेरियो में भी आओगे तो वो हेल्प करेगा आपको कि आपको कोर की नॉलेज है, आप उसको कैसे इम्प्लांट करोगे. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिविल में देखोगे कि आपके जो सराउंडिंग में वर्क कर रहे हैं दे आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग. तो आपको वहाँ देने डिसीजन लेना है. जो आपके नीचे है डिप्लोमा करके आए रहते हैं एंड साइट में जो काम कर रहे होते हैं, दे डोंट नो द थिंग एज यू डू. आपको टेक्निकल नॉलेज है, तो हर चीज आपने तुरंत तैयारी करी हो वो जरूरी नहीं है. आपकी पहले की कोर नॉलेज यहाँ बहुत आपको हेल्प करेगी. ये लास्ट क्वेश्चन जो आज हम लोग ले रहे हैं ऑडियंस से कि ऑफ कैंपस के लिए जो प्रोसेस है उसका थोड़ा एलाबोरेट कर दीजिए स्टेप वाइज. ओके, फर्स्ट तो आई विल स्टार्ट विथ रिज्यूमे. तो काफी इंपॉर्टेंट है एंड आई विल शेयर माय रिज्यूमे विथ यू टू. आप एक रिज्यूमे में ऐसा रखना कि इंटर्नशिप काफी इंपॉर्टेंट है एंड अदर प्रोजेक्ट्स और अदर इनरोलमेंट जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल दिख रही हो, मतलब जहाँ पे आपने ऐसा कुछ कर रहा हो, इधर वहाँ पे क्लब हो या कोई सोशल वर्क, लाइक आई वाज द पार्ट ऑफ NSS, रोटरैक्ट, तो आप ये सब वहाँ शो कर सकते हो. हाईलाइटिंग द नंबर्स वो एक काफी अच्छा इंप्रेशन देता है, आप वहाँ पे कुछ अगर ऐसा दिखाओ तो. और रिज्यूमे के बाद सेकंड मोस्ट कि आई विल से कि अप्लाई इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज. आई विल शेयर द लिस्ट हियर. और अप्लाई आप जितने ज्यादा करोगे, एक तो है कि चांसेस काफी कम है सिविल में एज अ फ्रेशर, बट इवन लाइक 1-2% भी चांस है, तो यू कैन गेट अ कॉल लाइक इफ यू अप्लाई मोस्ट, जो कि ITCS में इतना नहीं है बिकॉज वहाँ डिमांड काफी ज्यादा है. तो वहाँ पे आप इवन 10 कंपनीज में अप्लाई करते हो तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि 1-2 कंपनी कॉल कर दे. लेकिन हमारे में है कि फ्रेशर्स को इतना इन डिमांड नहीं है, तो कॉन्टैक्ट विद देम. अगर आपको नंबर मिलता है, कॉन्टैक्ट विद देम डायरेक्टली. आप अपने स्किल्स के बारे में बताओ उन्हें, उनको रिज्यूमे आप मेल करो, और जितना हो सके लिंक्डइन ये सब में भी आजकल काफी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं. लाइक स्टार्टिंग में हमें भी लगता था कि सिविल को लेके लिंक्डइन में वैकेंसीज नहीं मिलती है, बट नाउ डेज ये जो वेंडर्स कंपनीज है, लाइक ऐसे इंफ्रा में जब मैं था तो लिंक्डइन ने भी मेरे को हेल्प किया था इस पे. आई कोऑर्डिनेटेड विद देम. आप वहाँ पे जो उनसे एम्प्लॉयज है ऑलरेडी, आप वहाँ के एम्प्लॉयज से टच इन कर सकते हो कि हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे गॉट द जॉब. तो आप उनसे HR का इंफॉर्मेशन लेके यू कैन कोऑर्डिनेट विद देम. आपको थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी. एंड डोंट बी शाई टू मेक 30-40 कॉल्स अ डे. ट्राई दैट. और जैसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको चांस मिलेगा ही, ऐसा नहीं है, तो यू हैव टू डिसाइड कि अब आपको इसके बाद क्या करना है. आपको 2-3 ऑप्शन ही मिलेगा, ऐसा नहीं है. तो आप उस पर जब डिसाइड करोगे, इंटरव्यू राउंड आप पहुंचोगे, आपने बारे में बताओगे, तो दिस इज अ चांस कि आप कितना ज्यादा अप्लाई कर रहे हो और आप कैसे अपने स्किल्स को वहाँ शो कर रहे हो. थैंक यू भैया. भैया आप लोग कुछ सजेशन देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को जो हम लोग सब प्रेजेंट हैं? प्लीज आप लोग सब दीजिए. एक और क्वेश्चन है ना अमन के लिए. अमन तो कोडिंग करते थे यानी, तुम्हारे क्वेश्चन.
अच्छा हाँ, जस्ट 2 मिनट्स दे दो। एक दो और क्वेश्चंस मैंने देखा, जैसे दीक्षा का क्वेश्चन था कि फर्स्ट सेम में हूँ बट शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट राइट फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर, जब आप रियली सिविल में एंटर करते हो तो दैट वुड बी द बेस्ट। और फर्स्ट उसके ईयर थोड़ा बाद एंजॉय कर लो यार, कॉलेज लाइफ अभी है। हाँ रियली डोंट टेक टेंशन फ्रॉम नाउ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा अगर आप मतलब एक साल भी अच्छे से पढ़ लो तो। जेई एंड की बहुत नवनीत तैयारी का कर भी रहा है, अभी क्वेश्चन, चला रहा राइट, एंड नवनीत का क्वेश्चन था कि कौन सा कोचिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेस्ट है। देखो फॉर लेक्चर्स इट्स NPTEL। अगर NPTEL में लेक्चर्स मिल रहे हैं तो डू गो फॉर दैट, बिकॉज थ्योरी के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने टेस्ट सीरीज तो बता ही दिया। आई थिंक मेड इजी वुड बी द बेस्ट, अदरवाइज गो फॉर एस एकेडमी और जो भी है। मेड इजी आई थिंक इज द परफेक्ट वन। और कोडिंग, ऑफ कोर्स कोडिंग हर कोई नहीं जानता। मणिकांत का डाउट सही है कि कोडिंग आता है कि नहीं। अभी अभी मैं सीख गया कोडिंग वैसे, और मुझे पहले भी इंटरेस्ट था, अच्छे स्कोर्स आ गए थे फर्स्ट ईयर में। लेकिन कोडिंग इज नॉट अ कंपल्शन एट दिस स्टेज, बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर हायर स्टडीज और यू आर एंटरिंग द रिसर्च फील्ड, तो वहाँ पे आपको कोडिंग की जरूरत होगी थोड़ी सी, क्योंकि आपको थोड़ा सा वो आना चाहिए, मतलब आना चाहिए कि कैसे आप चीज़ों को और ज़्यादा शॉर्टन अप करो, ना कि मैनुअल कैलकुलेशंस के लिए जाओ। तो उसके लिए कोडिंग बहुत अच्छा रहेगा। और डेफिनेटली इफ यू आर परसुइंग सिविल विद द बेस्ट कोर मटेरियल्स, तो आपको गेट स्टेट एग्जाम्स आराम से क्लियर होंगे। जस्ट रिमेंबर टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी एंड रिविजन, ये तीन चीज अलॉन्ग विद थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक Yeah, क्वेश्चन मेरा था भैया। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ अमन भैया, एक क्वेश्चन था हाँ कि हिमांशु। आप थर्ड ईयर में भी गेट दे सकते हैं, तो हम लोगों ने दिया है थर्ड ईयर के, हम्म। तो उसमें हम लोग क्वालिफाई कर दिए, तो क्या वो रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं? डेफिनेटली मेंशन करो। अरे ये कोई पूछने का बात है, ये तो एक्चुअली ये एक तरीका बताता है कि एक तरह से बताता है कि हाउ मच एलिजिबल यू आर टू द फील्ड और हाउ मच गुड सिविल इंजीनियर यू आर। क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसा बोलना, मैं पर्सनली नहीं मानता कि कोई 3 घंटे का एग्जाम ये बता सकता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। लेकिन ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा वो कैपेबिलिटी है कि तुम उन 3 घंटों में भी बहुत कुछ कर सको, तो उसको शेयर करना और दुनिया को दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज लोगों को भी पता चलना चाहिए क्या चीज हो तुम। हाँ ओके भैया, थैंक यू एक भैया। सजेशन रहेगा, अगर प्राइवेट कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो तो ये हाईलाइट मत करना सीवी में, बिकॉज देयर सिनेरियो विद बी आप तो गेट निकाल लोगे एंड यू विल लीव अस आफ्टर अ ईयर। तो प्राइवेट कंपनीज प्रोबेबली में हर मत जगह लियो। ऐसा नहीं होता है, ये हाइप मतलब हाँ नहीं, ये हर जगह सुनने में मिला कि कैंपस प्लेसमेंट में बोल देंगे कि तुम्हारा 8.5 से ज्यादा या 9 से ज्यादा, यू आर ओवर क्वालिफाइड, यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। ऐसा नहीं है। और वो तुम्हारे पर्सनालिटी स्किल्स, वे ऑफ स्पीकिंग, इस सब पे डिपेंड करता है। इफ यू आर टू नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द इंटरव्यूअर्स, तो हाउ डेफिनेटली यू तुम्हारा टैकल द सिलेक्शन नहीं क्वेश्चन। होगा। हाँ, एंड इफ यू हैव अ रेडीमेड आंसर फॉर दिस कि कैसे कर रहे हो, अगर गेट है तो तुम ज्वाइन करोगे कि नहीं, तो तुम भी कुछ भी अपना बेस्ट लेके आ सकते हो। जैसे आई ट्राइड गेट फॉर टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ हाउ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वुड बी, या ऐसा कुछ भी जो कि उनको सूट करे। ओके भैया, थैंक यू। हेलो भैया। हाँ हाँ मुस्कान। भैया आप कुछ सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर सकते हैं जो एक सिविल इंजीनियर को आने चाहिए? ऑफ कोर्स एट दिस स्टेज तुम्हें ऑटो कैड तो आना चाहिए। रेविट भी सीख पाओ तो बहुत बढ़िया है। और इधर एनालिसिस सॉफ्टवेयर में, ये तो हो गया ड्राइंग सॉफ्टवेयर, एनालिसिस सॉफ्टवेयर में तुम्हें स्टार्ट प्रो आना चाहिए। अगर हो सके तो ईटैप सीख लो, वो ज़्यादा इजी है अगर सिस्मिक स्टडी कर रहे हो तो, मतलब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन के लिए। एंड ये दोनों बेस्ट रहेगा। और ऑफ कोर्स तुम हायर स्टडीज के लिए आओगे तो मतलब आई थिंक यू विल गेट मोर एक्सपोजर टू फाइनाइट एलिमेंट सॉफ्टवेयर, पर वो इस स्टेज पे इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टार्ट प्रो इज जस्ट एनफ। सौरभ अभी भी शायद उसी में काम होता है ना, इंडस्ट्रीज में। That is a must. I would like to add कि 70% काम एक्सेल पे ही होते हैं even now. तो एक्सेल में if you are good with macros and all, you can handle most of the work. And after that, in practical scenario जो हमने देखा है, Midas is very applicable in structure part. So if you really want to go in structure, Excel and Midas are must. ओके, थैंक यू भैया। या
बट अभी मिडास वो लोग नहीं सीख पाएंगे. स्टार्ट प्रो इज जस्ट इनफ फॉर देम एनालिसिस सॉफ्टवेयर में. और ड्राइंग के लिए तो AutoCAD इज द बेस्ट. But do a course in advanced Excel. Yeah, Excel. Okay, any more questions? Okay, I think we don't have more question. भाई कुंदन भाई, आप कुछ सजेशन दीजिए ना. आप डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहे हैं. सजेशन तो मैं सजेशन एडवाइस दे देता हूँ बेसिकली है कि सिविल में मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट कोई भी है ना, तो तुम आगे सक्सेस कर लो. मतलब मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ, जैसे कि अमन उज्ज्वल एंड मोनालिशा है, वो दोनों को सिविल में इंटरेस्ट था और वो दोनों सिविल से उन्होंने काफी अच्छे मार्क्स लिए और अभी दोनों हायर स्टडीज के लिए चले गए. फिर सौरव सोनी है, उसे भी सिविल में बहुत इंटरेस्ट था और उसने जॉब ले ली. तो ये सेकंड सिनेरियो हो गया. फिर थर्ड सिनेरियो निशांत को देख लो एंड प्रियांशु को देख लो. ये सबको सिविल में, अच्छा प्रियांशु एंड सौरव सोनी की जैसा है. फिर निशांत को भी सिविल में उतना इंटरेस्ट नहीं था और उसने एमएनसी में जॉब ले लिया. अमन अग्रवाल, शाश्वत, हाँ शाश्वत, आर्यन, ये सबको इंटरेस्ट नहीं सिविल में, उन्होंने कोडिंग की जॉब ले ली. तो हर तुम लोग को मतलब जो मन है वो कर सकते हो, ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है. बस मेहनत करोगे तो कोई भी बात है ना, उधर में तुम लोग आगे बढ़ सकते हो. ये बस एग्जांपल्स भी हमारे पास, लाइव एग्जांपल्स. Thank you very much, Bhaiya. With this, we come to the end of this webinar. We would like to thank Aman Bhaiya, Nishant Bhaiya, Saurav Bhaiya, and Kundan Bhaiya for tuning in and answering all the queries, and all the audience too. Thank you very much. Okay, I see we have a question, I think. Arun Kumar? Yes, भैया. मेरा एक क्वेश्चन है भैया कि ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता है कि मतलब हम किस ब्रांच में, ये इम्पोर्टेंट मतलब रखता है कि नहीं हमारे मतलब ये पूरे मतलब इंजीनियरिंग for coding job. For coding job, are you asking? हाँ, आई थिंक वो कोडिंग जॉब के लिए मीन कर रहा है. डेफिनेटली कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो वो जरूर पूछेंगे व्हाई यू आर हियर विद सिविल. तो इसके लिए तुम्हें एक रेडीमेड आंसर होना चाहिए. तो मोर यू आर आई मीन टू से स्लाई, मतलब जितने चालाक हो गए आंसर करने में, उतना ज़्यादा तुम्हारा प्लेसमेंट सिनारियो अच्छा जाने वाला है. तो कुंदन इस पे थोड़ा हाइलाइट्स देगा. हाँ, एक तरीका आर्यन एंड अमन अग्रवाल का मुझे बहुत सही लगा था. उन्होंने एक कोई कंपनी है इंटरव्यू पे, उनके साथ एक कोर्स किया था 6 मंथ का. और वो कोर्स क्या था कि अगर तुम उस कोर्स के लिए क्वालिफाई हो जाते हो तो गारंटीड है कि तुम्हें जॉब मिल जाएगा. कोई कोर्स है इंटरव्यू बीआईटी का, उसके लिए देख लेना अगर तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट है. तो वो मुझे बहुत सही लगा था. और उसमें भी तुम्हारा ब्रांच नहीं दिखता, तो ब्रांच से उसमें फर्क नहीं पड़ता. वो एक तरीका है. ये भी तो कारण हो सकता है किसी के मान लीजिए जिसका मान लीजिए कि इंटरेस्टेड 12th क्लास में ना हो और जेईई मेन के बेसिस पे उसको ये सीएस ना ब्रांच मिला हो, उसको सिविल ब्रांच मिल गया हो और वो कोडिंग करना चाहता हो शुरू से. हाँ, तो ये मेरे साथ भी तो यही केस था. मुझे मेरे सबके साथ, आई थिंक मेजॉरिटी के साथ. राइट. तो मुझे भी इंटरेस्ट था, तो ऐसे ही था. मैंने फर्स्ट ईयर में ट्राई किया था सिविल को पसंद करने का, पर मुझसे हुआ नहीं. फिर उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया, एंड्रॉइड ऐप बनाना स्टार्ट कर दिया. तो 2 साल मैंने एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख ली. फिर उससे भी मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया. फिर थर्ड ईयर में मैंने डेटा साइंस स्टार्ट किया. फिर डेटा साइंस में इंटरेस्ट आने लगा. फिर डेटा साइंस में मैंने जॉब ली. तो बेसिकली तुम्हें जो पसंद है तुम वो कर सकते हो, बस तुम्हें मेहनत करना है. मेहनत इसके बाद. Thank you very much, Bhaiya. Now we'll wrap up this webinar. Thank you very much for tuning in, everyone. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you, भैया. Bye. Thank you, Take भैया. care. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound.